اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ہے جی 21 رمضان المبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ منظور صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے بارے میں، تو سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، برادران محترم، خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ وجہ کریم، آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ہمہ جہت مشہور و معروف ہیں، اور آپ کی ذات کعبہ مقبلہ ہے۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ میں بھائی بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مقام عرش بری شہزادی اسلام جناب تنویر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ شوہر نامدار بھی ہیں، اور نسبت کہ یہ کہ آپ شہزادہ حضرت امام حسن شہزادہ کونین سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی ہیں، اور آپ حضور کی لخت جگر ہیں، اور یہ نسبت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار اسی طریقہ سے تمام صحابہ میں سے زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ کو خرقۂ فخر بھی ملا، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ الفقر و فخری والفقر منی، تو جو علی ہے اس کو میں نے اپنا لعاب دہن چٹا کر ان کو اپنے ذات والا صفات کے جتنے بھی میرے میں اوصاف تھے میں نے جناب علی میں وہ منتقل کر دیے۔ علی جو ہیں وہ عظیم ذات ہے کہ سوراہی دار آپ کی گردن مبارک، سراپا مبارک، سیرت نگاروں نے لکھا کہ چاندی جیسا آپ کا بدن مبارک، کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہوتے، جب آپ دشمن کے سامنے ہوتے، وہ دشمن جو خدا اور رسول سے جنگ کرتا تھا، جو دین کا دشمن تھا، اس کے سامنے ہوتے تو آپ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پوری زندگی آپ نے صرف اور صرف اللہ اور رسول کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد بھی کیے، لڑائی بھی کی، اور ہر لڑائی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور اسی جوہر دکھانے کی صلہ یہ ملا بارگاہ رسول سے، فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ الغالب، غالب شیر ہیں، اور آپ حق بات کو ہمیشہ بیان فرماتے، اور حق آپ سربلندی کے لیے اپنے سر توڑ کوشش میں رہتے۔ ایک دفعہ ایک کافر نے آپ کو للکارا کہ آپ کو نہیں بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق کہنے لگا کہ میں نے محمد سے کشتی لڑنی ہے، میں نے ان سے کشتی لڑنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام نے اس کی بات کا ذکر کیا، کافر کی بات کا ذکر کیا کہ ایسے یا رسول اللہ کہتا ہے۔ جناب حضور مولا کائنات جو تھے وہ پاس موجود بیٹھے تھے۔ کافر کا یہ طاقت کا عالم تھا کہ وہ گائے کا کچا چمڑا اپنے پاؤں میں دبا لیتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کھینچو، جب لوگ کھینچتے تھے تو چمڑا ٹوٹ جاتا تھا، وہ اپنے پاؤں سے نیچے سے جانے نہیں دیتا تھا، تو اتنا وہ طاقتور تھا۔ تو جناب علی المرتضیٰ حیدر قرار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافر سے میں کشتی لڑوں گا۔ آپ اس سے کشتی لڑے، آپ نے اس کو بچھاڑا اور بچھا کر اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے۔ جب چھاتی پہ چڑھے تو اس نے نیچے سے
आपके चेहरा मुबारक के ऊपर थूक दिया। जब थूका तो आप हया की वजह से बहर उसको छोड़कर अलग हो गए। कमर साहब जो थे आपके साथी, वो कहने लगे हुजूर इसे मार दो इस काफिर को। फरमाया नहीं, अली अपनी ज़ात के लिए कभी भी नहीं लड़ता, जब भी वो लड़ता है खुदा और रसूल की ज़ात के लिए लड़ता है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला था। उसने मेरे चेहरे पे थूका था, जब मैं इसका बदला लेता तो ये मेरा अपनी ज़ात का बदला था। अली जो है वो अपनी ज़ात का बदला कभी नहीं लेता, जब भी वो लड़ता है अल्लाह रसूल के ज़ात के लिए ही लड़ता है और अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ता। अज़ीज़ान मोहतरम, 21 रमज़ान मुबारक आप लोगों को नमाज के लिए उठा, आपके आते मुबारक थी, नमाज फजर के लिए आप उठाते थे। आ रहे हैं मस्जिद में, उधर मलून जो मेरे बल्ले में वो छुपा हुआ था, उसने आप पे हमला किया और आप को ज़ख्म ज़्यादा आया। दूसरे साहब उन्होंने नमाज को पढ़ाया, कातिल को पकड़ लिया गया, उसके मुंह पे कंबल डालकर पकड़ लिया गया। कई दूसरे साहबा जो थे वो भी ज़ख्मी हुए। तो आपने वो घबराया हुआ था, आपके सामने पेश किया गया। फरमाया इसे कुछ नहीं कहना, क्या हुआ तुझे, घबराहट है जी? फरमाया इसे शरबत पिला दो, पानी नहीं इसे शरबत पिला दो। शरबत पिला दिया गया। फरमाया अगर मैं ठीक हो जाऊं, इसके ज़ख्म लगाए हुए ज़ख्म से मैं जान बर ना हो सकूं, ठीक हो जाऊं, तो फरमाया कि इसे कुछ नहीं कहने, छोड़ देना। मैंने अब पहले नीयत की है, मैंने सिर्फ अल्लाह और रसूल के नाम के इसे छोड़ दिया। अगर मैं इन्हीं ज़ख्मों में, किसके लगाए हुए ज़ख्मों में शहीद हो जाऊं तो इसको शरीयत के मुताबिक सज़ा दे देना। आप 21 रमज़ान मुबारक को शहीद हुए और ये आफ्ताब नैर आज़म हज़ारों करोड़ों दिलों को मुनव्वर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के होश में आज भी उनका फैज़ जो है वह पूरी कायनात में रोज़े रोशनी की तरह जिधर जिधर भी देखा जाता है। तो शाह मर्दा शेर यसना कुवते परवरदिगार लाफता इला अलीला सैफ़ुल्फ़िकार, ये नग़मात जो है ये परिंदों की ज़बान में भी हैं और इंसानों की ज़बान, जन्नात की ज़बान पे भी हैं। और ये आपका जो ज़िक्र है वो चलता रहेगा। ये सूरज चाँद सितारे जब तक दिल में करते रहेंगे आपका ज़िक्र होता रहेगा, उसके बाद भी आपका ज़िक्र होता रहेगा, क्योंकि आपकी ज़ात पे दरूद पड़े जाते हैं। हजूर की आल, आप हजूर की आल हैं, आप हजूर के आल हैं, आल में शामिल हैं। तो जब तक कि हम नमाज में सरकार की ज़ात पे, उनके आल पे दरूद नहीं पढ़ते, तब तक हमारी बंदगी कबूल नहीं होती। इसीलिए आपका ज़िक्र जो है ये दरूद शरीफ कौन सा वजीफ़ा है, वो अल्लाह पाक भी उस वजीफ़े को कर रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते भी कर रहे हैं, ईमानदार भी करते रहेंगे। जब सारी कायनात जो है वो सिलसिला खुदा से ख़त्म कर देगा तो अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है, वो इस दरूद को चलाता रहेगा। इसी ज़ुमरे में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर करार का ज़िक्र मुबारक होता रहेगा। जनाब अली मुर्तज़ा हैदर करार एक दफ़ा बैठे हैं तो एक साहब ने आकर अर्ज़ की कि हुजूर कब्र से डर लगता है। फरमाया अली से मोहब्बत रखता है? अर्ज़ की कि हुजूर रखता हूँ। फरमाया कि तुझे कब्र में घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो मेरे हुब्बदार होगा, मेरी मोहब्बत रखने वाला होगा, तो वो इंशाअल्लाह कब्र भी महफूज व मामून रहेगा और वो माशर में महफूज रहेगा। और मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये बारहा सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस किसी के साथ दुनिया में मोहब्बत होगी वो माशर में उसी के साथ होगा। तो फरमाया अगर मेरे बच्चे तुझे मेरी ज़ात से मोहब्बत है तो तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तू जाएगा कब्र में होगा तो कब्र में भी तुझ पे रहम किया जाएगा और जब तू हश्र में होगा तो मेरे साथ होगा, क्योंकि हम बावफा हैं, हम कदरदान हैं अपने मानने वालों के, अपने मोहब्बत करने वालों के। तो इसलिए आज चाहिए पूरी मिल्लत इस्लामिया को कि उनकी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहें और उनकी ज़ात पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें और उन्हीं का सदका अल्लाह पाक के हुजूर अपने
लिए अपने बच्चों के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदा की ज़ात पूरे मुल्क के लिए दुआएं करें। बिलखुसूस ये कोरोना वायरस वगैरह का जो मसला चल रहा है, इसके लिए पूरी मिलत इस्लामिया को अल्लाह महफूज रखे। अगर दूसरे गैर मुस्लिम से कोई लोग ऐसे हैं जो मोतदिल हैं, एतदाल के साथ रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह का सदका उन्हें भी अल्लाह पाक इससे महफूज मामूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें, साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हैं एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।